you have to answer. Ma'am, in the last class, you told about plasma welding and you went into the gas welding and types of flame, that is Okay. neutral, carburized, and oxidized flames. And then you said that Okay. in the next class, I will tell about these things expandedly. Mm. So, Ayush, what is your roll number? Ma'am, 14. 14. 1 for 14, ma'am. हाँ ठीक है. Monica, are you there? Monica, Alam, Monica, are you there? Monica, are you there? Am I audible? Yes, ma'am. Am I audible? So, Monica, are you there? Kindly remove Monica from the group. Mamta Kumari, are you there? I don't know who is the host. Kindly remove Monica from the group. Mamta Kumari, are you there? Mamta Kumari, are you there? Mamta Kumari, are you there? Kindly remove Mamta Kumari. Who is the host of this group? Who is the host? Has he joined? Has he or she joined? Who is the, actually, why your response is like that? Who is the administrator? Who is the host of this meeting? Ma'am, one of Who the is the CRs host was of this? So just remove Monica and Mamta Kumari from this group. Prachi Das, are you there? I think I have asked Mamta Kumari previously also question. She was not able to answer properly. Okay, I have marked it. So like this, I don't know. She will get 0 in class performance, and then she will start crying or she will start shouting. 5 marks कहाँ चले गए? 5 marks का आप लोग तो सर पे बैठ जाते हो 5 marks के लिए. So Mamta Kumari will get 0 for the class performance. Lala Monica, I have to see if I have asked her questions before, otherwise she will get 0. Prachi, are you there? Prachi, I think went out. This is very good actually. This is very good. So mark Prachi absent. Judy, are you there? You just mark Prachi absent. Sahil Khan, are you there? 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 Okay. So all these will be having very, very less mark. This 5 marks I will deduct actually. Once you join, you have to respond. Am I audible? Is my voice inaudible? No, ma'am, it's audible. Okay. Sanjeev Pratap Verma, are you there? Sanjeev Pratap Verma, are you there? Yes, ma'am. Sanjeev Pratap. So why you people take so long to respond? मैम नेटवर्क स्लो है, नहीं
समझ में तो आप बताइए टीग और प्लाज्मा का क्या डिफरेंस है? मैम अभी ठीक से नहीं पढ़े मैम, कल बता देंगे। ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। आप लोग को क्लियर है कि स्लाइड्स दे दिया गया है? फ्राइडे लास्ट क्लास था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन आप लोगों को मिले एंड देन स्लाइड्स दे दिया गया था बहुत पहले। ठीक है, क्लास में पढ़ाया गया, वीडियो दिखाया गया, जितना हो पाए वो किए। ठीक है, यू हैव, मैंने बार बार रिपीट किया कि क्लास में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं पे आप लोगों का वो क्लास परफॉर्मेंस है, आइदर 5 मार्क्स नहीं तो 10 मार्क्स। इफ आई एम अनेबल टू टेक द क्लास टेस्ट मैं 10 मार्क्स कर दूंगी और अदर 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस। दिस इज नॉट द एक्सक्यूज, दिस इज नॉट द एक्सक्यूज। डू यू वांट 5 मार्क्स? संजीव प्रताप वर्मा, Sanjeev Pratap Verma, do you want 10 marks? Yes, ma'am. So I'm giving you one more chance. Next class you have to answer whatever I asked. Okay, ma'am. And next class is tomorrow itself. Okay, ma'am. I will do. Shakaldev Kumar Yadav, are you there? Shakaldev Kumar Yadav, are you there? I think you have entered through your name only because I'm taking the attendance through the name. Today I will not ask the CR. Shakaldev Kumar Yadav, are you there? Okay, he also got a 0. But if this is the class performance, after teaching so much, your almost 2/3 syllabus is completed. Okay, the main thing are coming, not 2/3, half of the syllabus is completed. Okay, but if this is the, what is the use of teaching you people? And where are the girls? After switching on, do they sleep? So I've already taken the attendance today. No need of taking the attendance. Okay, Mamta Kumari, you have just joined. Respond, Mamta. Yes, ma'am. Mamta. So where were you? मैम मेरे बार लेफ्ट हो जा रहा है। तो मैं जब पूछ रही थी तब आप लेफ्ट नहीं हो जा रहे थे, तब आप थे। आवाज ही नहीं आ रहा था, मैं सुने ही नहीं कि मेरा नाम लिया गया कि नहीं। Okay, now then you respond. What are the types of plasma arc welding? Plasma arc welding को आप respond कीजिए, समझाइए what is that actually? Plasma arc welding. प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ममता, पहले भी आपको पूछा गया था, मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास, एक क्लास में मैं आपको पूछूंगी, यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप तब भी नहीं आंसर कर पाए थे और तभी आप बोल रहे थे मैं सुनाई नहीं दिया, ये दिया वो दिया। यू हैव टू रेस्पॉन्ड टुडे इटसेल्फ, अदरवाइज प्लीज डोंट क्लेम दैट 5 मार्क्स। यू आर गेटिंग 0, यू आर गेटिंग 0। Mamta, I am giving you one more second. Mamta Kumari, am I audible? सॉरी मैम, मेरे फिर से हो गया था लेफ्ट। I am saying प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का आप डेफिनेशन आप पूरा मुझे समझाइए। यू टीच मी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। यस मैम। मैम फिर से यस मैम, आई अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया मैम, मतलब कि आवाज ही नहीं आ रही है। तो what is the use of you joining in the class? I said, I think she went out. This girl is impossible. No need of wasting time with her. Vinisha Sai Jyoti, are you there? Jyotsna. Vinisha Sai Jyotsna, are you there? Yes, ma'am.
हाँ, आप बताइए मुझे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग बताइए। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का क्लासिफाई करते हुए वेल्डिंग्स को क्लासिफाई कीजिए। Yes, ma'am. In consumable electrode, the electrode will be consumed in the welding process, ma'am. Means the filler material will also be in two types. It will be coated outside the electrode, or it will be placed in the core of the electrode, so that while welding, the filler material will be consumed in the welding process, ma'am. I said classify the welding as per conjugable and non-conjugable electrode. You have given a good answer about conjugable electrode. I said classify the welding processes as per conjugable and non-conjugable electrode. Classify the welding processes as per the conjugable and non-conjugable electrode. Yes, ma'am. In consumable electrode, there are few arc welding and shield welding, shield metal arc welding, and inert gas metal arc welding, ma'am. And non-conjugable? And non-consumable. You don't know. You are seeing somewhere and then you are answering. No, ma'am, not seeing, ma'am. At least you have responded. At least you have responded. Okay. Thank you. Okay. Reshav Bhatia, are you there? Reshav Bhatia, are you there? Reshav Bhatia, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me, teach me plasma arc welding. Plasma arc welding. To the class also, they will also be having an idea. Yes, ma'am. Yes. Plasma arc welding. I mean, similar. Electrode. An electric arc is formed between the electrode and the workpiece. This is due to the voltage difference between the two workspace, and this is something related to plasma arc welding. What? Electric arc is What? formed between the electrode and the workpiece in plasma arc welding. Hello, Tell am me. I audible? I'm okay. Tell me. Okay. Proceed. What are the two different types of arc welding? Plasma arc welding. Two different types of plasma arc welding are I don't remember. I'm sorry. Next class I'll tell you. I don't specifically remember them. Can I tell you next class? I'll study and come. How many days you people got? Last class was on Friday, and Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. What is the use here shouting? Because this is a manufacturing subject, you're not a very core subject for you people. So no need of studying. Why you people are even interested in the subject? So why I'm even taking the class? Let me give 0 to all the class performance except the few who responds daily. And then I don't know who, I have noted down the name who responds daily. Let me give them the marks. Others sleep. What's the use shouting here? Ma'am, can I There. explain? Yes.
Ma'am, there are like two stages in plasma welding. First will be non-transferable and then it will be transferred. In first, the arc will be between electrode and the nozzle. And when it is enough hot or enough powerful, the workpiece will become positive and it will become transferred. Hmm. And gas is not directly, it is provided from side. Hmm. Okay. ठीक है. Next class में come everyone. I'm requesting everyone to come prepared. Okay. Because जो भी है आपके सिलेबस पे ये है, आप लोग को पढ़ना है. एंड मैं इमीडिएट मार्क्स काट दूंगी. जैसे ममता कुमारी को मैंने शायद ये 3rd क्लास में क्वेश्चन पूछा था. आई डोंट नो अबाउट हर नेटवर्क और समथिंग, बट I don't know. I will give a call to her if it is possible, and then I will ask few questions to her, and she will get 0 after that. Okay. Similarly, I have asked Monica also before. The response was same. I don't know. Okay. So like this, how am I supposed to continue with the class? Because for you people, cheating is become so easy. Whatever question paper I set, whatever, no matter how much tough we set, you people will be having someone who will be answering all the questions, and then if I look into the midterm papers, every answer is the same. Now whom to give less marks, whom to give more marks? I will give less marks to the toppers and more marks to the lower persons. If the toppers are the one who are distributing the answer to the other people, yes, so why should I give them the marks? If they are promoting cheating, so why should I give them the marks? Or shall I cut marks wherever the answer is exactly same? Shall I cut all the marks? Is it the way? ये अच्छा होता कि आप लोग को 19 नवंबर को बुलाए, ऑफलाइन एग्जाम करवा देते, फेल कर जाते, सब लोग फेल कर जाते. मेरा सब्जेक्ट तो फिर भी इजी है, दूसरों के सब्जेक्ट में फेल कर जाते. What is the point of shouting here? I don't know, but I have to do my duty. Otherwise, मैम क्लास नहीं लेती है, वाला भी क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का. खुद पढ़ो ना पढ़ो, कुछ करो ना करो. It is I don't know what type of thing, what type of assumptions you people are having. I don't know. So you people are going to present for a viva, or for you people are going to present, because viva में आप लोगों के निकल जाएंगे, ऐसा टाइप का आंसर देंगे ना. Don't expect me to give you 70-80 marks. सब लोग फेल कर जाओगे लैब पे. 50 मार्क्स से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा. यहाँ पर बैठ के नोट्स बनाओ, यहाँ पर बैठ के यहाँ पर आके चिल्लाओ, उसका ये परफॉर्मेंस है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू दैट आई विल बी asking questions and giving you class performance marks. Is it the first time I am telling you, or is it the first time I am asking you question? Is it the first time? Respond. Is it the first time?
Am I audible? Yes, ma'am. So is it the first time? No. No, तो आप ma'am. लोग क्या करने वाले हो बोलिए, क्लास में ही बोलिए। आप लोग पीपीटी प्रिपेयर करोगे या वाइबा पे डिपेंड करोगे? क्योंकि वाइबा पे आप लोगों का ये जो परफॉर्मेंस है, डोंट एक्सपेक्ट मी टू गिव यू, बिकॉज अटेंडेंस में ज्यादा से ज्यादा 20% मार्क्स जाता है। मैं नहीं जानती लोग का 50 मार्क्स का होता है या मैं भूल गई हूँ, या 100 मार्क्स का होता है लैब का। तो जीरो दे दूंगी अगर वाइबा पे आंसर नहीं कर पाए। मैं बैठू और 2-3 तुषार सर में भी और 2-3 प्रोफेसर का पैनल बैठ जाएगा, जीरो, यू विल गेट 0 आउट ऑफ 70। ये थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चंस पूछती हूँ वही क्वेश्चन मैं क्लास में आके पूछती हूँ, जो क्वेश्चंस बताती हूँ। फास्ट जाती हूँ, समझ में नहीं आता, रिपीट पूछो, मैम रिपीट नहीं। फिर मैं जब नाम कॉल कर रही हूँ, दे आर प्रेजेंट इन द क्लास एंड आई थिंक दे आर स्लीपिंग। डोंट एक्सपेक्ट मी, ओके? मैं अभी अपने मुताबिक मैं हर दिन 5-10 लोगों का नाम बुलाऊंगी। मैं मार्क्स ऑलरेडी किसी किसी को दे चुकी हूँ और किसी किसी को मार्क्स वो मिल चुका है, ठीक है? सो डोंट एक्सपेक्ट मी, ओके? एंड वाइबा पे आप लोग क्या करोगे? कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो तुरंत बताइए, सिलेबस आगे बढ़ा के फायदा नहीं है। पहले बताइए आप लोग क्या करने वाले हो। Jyoti, are you there? Jyoti, are you there? And the other CR name I completely forgot. I have the name noted down. Today I'm taking class from home, so a bit difficult. Jyoti, are you there? Jyoti is not there, I think. Any CR is in the class? Huh? You want to make PPT? Is it a whole class? You are the CR? Yes, ma'am. Ma'am, we decided to have PPT for Viva, means for marking. So when is your anthem starting? Do you have any idea that is the date declared? Because in the academic calendar must have been mentioned that from this to this there will be anthem. I guess it was from 3rd December. Okay, so you have enough time, right? Yes, ma'am. You have enough time. Yes. So during the Viva, I will be taking presentation. So how many students are here? How many students are there? Ma'am, total we have 117 students. Total 117 students. So make a group of 6. Okay. Okay, ma'am. And Ma'am, the grouping will be random, means we can choose anyone, our partner, our own. yes, it is better because I don't know you people clearly, right? So you people only know with whom you will be comfortable, because Okay, ये ma'am. offline नहीं है, online है. So you must be interacting with people with whom you are comfortable with. Okay, ma'am. As far as I can say, I cannot. If I will choose, then you may be clapped up with someone who is you may not be very yes comfortable with. Yes, ma'am. It's better to Yeah. have to decide with to. What? Today, yeah, tomorrow, okay. No, I will be sending you the structure, okay. You just do it, because NET is not there in the college. So I am taking again from home. I came back to home. Once NET is there, I will be forwarding you the slides, because I have that slides, okay. I have made the slides. I generally take PPT, okay. Then I know you people I have seen they perform very well, because all the students I have taken PPT earlier also, and the students really perform well. So they learn a topic also, and they know how to do the project also. They got an idea, okay. So I will be helping you out. Yeah, जैसे आप लोग क्या कीजिए, जो भी CR है, I think 6 CRs are there, right? How many Yes, CRs ma'am. are there? 6 years. 6 CRs are there, right? Yes, ma'am. ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपने
अपने आप लोग ग्रुप्स बना लीजिए, ठीक है। आप लोगों ग्रुप बना के मुझे सैटरडे तक ग्रुप्स का नाम दे दीजिए, ठीक है, विद टॉपिक्स। आप लोग क्या क्या टॉपिक पे करना चाहते हो, जैसे कोई भी रिसेंट वेल्डिंग का जैसे ले लीजिए, जैसे कि जो भी क्लास में हुआ है, आउट ऑफ द सिलेबस मत जाइएगा, ठीक है, ताकि सब लोग आप लोगों के साथ सीख पाए, ठीक है। सो अराउंड 20 ग्रुप्स फॉर्म होंगे, ठीक है, 19-20 ग्रुप्स अराउंड फॉर्म होंगे, ठीक है। तो 1-2 स्टूडेंट्स इधर उधर कम हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग CRs अगर 6-6 का ग्रुप होगा तो CR ले लीजिए, 4-4 ग्रुप को ऑर्गेनाइज कीजिए एंड उन लोगों का मुझे वो बताइए, आप लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, मतलब जैसे ये हुआ, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, आप लोगों का ग्रुप को बदलिए, जैसे कि मैंने पढ़ा लिया आर्क वेल्डिंग, ठीक है, मिग वेल्डिंग, तो मिग वेल्डिंग का कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लीजिए एंड उसका PPT बनाते रहिए, ठीक है। या प्रोबेबिलिटी टेस्ट, उसका एक इंपॉर्टेंट 5 ऐसे गूगल में डालोगे तो लिटरेचर्स आ जाएंगे, उसमें से एक लिटरेचर को आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसको अगर समझ में ना आए तो आई कैन हेल्प यू in that, okay, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, या I will be sending you my 3 PhD students name, they also can help you in doing the literature survey, ठीक है। कोई भी एक लिटरेचर को पहले आप लोग टॉपिक डिसाइड कर लीजिएगा, कोई भी एक लिटरेचर को डाउनलोड कीजिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। वो लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा, इंट्रोडक्शन लिखा होगा, उसके बाद रिजल्ट्स एंड डिस्कशन रहता है, मिडिल में कुछ भी रहता है, मेथोडोलॉजी रहता है, या एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन रहता है, या कुछ भी रहता है, उसको पढ़िए कि उन लोगों ने वो टॉपिक पे क्यों काम किया और क्या इंपॉर्टेंस है। Yes. Okay, ma'am. Ma'am, what should be the duration of our PPT? First, you people prepare, I don't know, maybe 10 to 20 minutes per PPT, because groups are many, no? Like if you divide it by 6, there will be around 19 to 20 groups, I guess. 19 to 20 groups must be there. So, okay, I will take within by 2 or 3 days or 4 days, I will be taking 5 groups. So you will be allotted with 20 marks here. In each and every one of you have to respond and tell me what is the contribution. Yes. आप लोग क्या करेगा, मैं आप लोगों को एक स्लाइड कल आज अगर नेट आ जाता है मैं वहीं से प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो कल तक कर दूंगी और कल क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगी, ओके। सो अभी मैं क्या टॉपिक पढ़ा रही थी, गैस वेल्डिंग, राइट। तो गैस वेल्डिंग में बेसिकली आप लोग क्या था, मैंने एसिटाइलिन और ये क्या था आपका एसिटाइलिन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें से कुछ रिएक्शंस रहता है। अगर एसिटाइलिन ज्यादा है प्रोपोर्शन में 1:1 रेशियो में अगर दोनों को मिलाया जा रहा है मिक्सिंग चैम्बर, तो उसको न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। उसका वो एक अलग होता है, उसमें ज्यादा हीट जनरेट हो सकती है। या कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम में आप लोग क्या करते हो, कार्बोराइजिंग फ्लेम में आप लोग का कम्स ज्यादा रहता है, ठीक है, मतलब एसिटाइलिन ज्यादा रहेगा, ठीक है। एंड आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपका ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल बी गेटिंग 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। यस, एंड देयर आर सर्टेन मेथड्स। जैसे आपका ये वाला सिंपल इक्वेशन है सपोजिटली, ठीक है। आपका क्या हुआ, एसिटाइलिन ऑक्सीजन के साथ मिला, इसमें आपका एक ये ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ उसके लिए वो है C2H2, आपका 1 रेशियो ऑफ C2H2 2.5 रेशियो ऑक्सीजन के साथ मिलके आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये एक आपका रिएक्शन है, ठीक है। तो आपका ये रिएक्शन क्या हुआ, इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जनरेट, और ये जो हीट हमेशा जनरेट होता है, दैट हीट इज एक्चुअली फॉर्मिंग द फ्लेम एंड इज गिविंग यू व्हाट एंड इट इज गिविंग यू the heat for welding. Yes, and it is a very basic process. So flame and arc का difference यही होता है। flame आपका कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के जनरली होता है, या जो आर्क जैसा होता है कैंडल में जो होता है वो फ्लेम होता है। आर्क होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, ठीक है। तो आर्क इमीडिएटली आपके प्लेट को हीट कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम का अगर इनर
कोन, 2 कोन्स अगर आते हैं तो इनर वाला जो आप कैंडल्स में भी देखते हो, इनर वाला आपका क्या होता है, ज्यादा हीटेड अप होता है। आप कैंडल में ऊपर के फ्लेम को हाथ से टच कर सकते हो, बट इनर में अगर रहता है वो, उससे आप तुरंत टच नहीं कर सकते। सिमिलर इज द केस विथ हियर। यस, सो वहां पर फ्लेम पे आपका जो भी हीट जनरेट होता है थ्रू केमिकल रिएक्शंस, उसमें से वो फ्लेम आपके प्लेट को हीट करता है। सो आर्क आपका ज्यादा फोकस हो सकता है बिकॉज यू कैन फोकस इट थ्रू सम सर्टेन नोजल। और ये इसके लिए दो टाइप ऑफ टर्मिनल चाहिए होता है। एक होता है 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड चाहिए होता है, एक कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एक नेगेटिव टर्मिनल। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपका वर्क पीस रहे ना रहे वो फ्लेम फॉर्म होगा। ठीक है, तो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस। यस, सो यू जस्ट गो थ्रू दिस वन, देयर इज नथिंग टू स्टडी। आई हैव गिवन यू द स्लाइड्स। ओके, तो आप लोग थोड़ा रिएक्शंस, 2 प्राइमरी काइंड ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसमें आप लोगों का CO2 और O2 मिक्स होता है। यहाँ पर आप देखिए न्यूट्रल फ्लेम फॉर्म हो रहा है, 2 CO2 H2 एंड 2 ऑक्सीजन फॉर्म कर कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये फॉर्म कर रहा है। और एयर में फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर रह गया। कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, वो बहुत ही एग्जॉस्ट, बहुत ही खराब होता है। तो वो ऑक्सीजन, एयर के ऑक्सीजन से मिलके वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करके वो एग्जॉस्ट गैस की तरह वो निकल जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन गैसेस भी ऑक्सीजन, एयर के साथ ऑक्सीजन मिला के वाटर वेपर बन के वो निकल सकता है। या सो these are the simple and secondary reaction. So after secondary reaction, what it is called the protection envelope. Since C2 and H2 here consumes the oxygen entering from surrounding air, thereby protecting the well from oxidization. अभी बात है ये तीनों फ्लेम का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये तीनों फ्लेम का सिग्निफिकेंस ये है कि न्यूट्रल फ्लेम आप जनरली क्या होगा, कोई भी मटेरियल को करके लिए रेडी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन FeC जो फेरस होता है, फेरस जो होता है उसको आप अगर ऑक्सीडाइजिंग से करोगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा फॉर्म करने का चांसेस होता है। ठीक है, एलिमेंट। तो ये डिपेंड करता है, मैं एक लिस्ट दे दूंगी। ठीक है, कौन सा एलिमेंट जनरली कौन से फ्लेम से जनरली प्रेफरेबल होता है। यस, आई विल बी ट्राइंग टू प्रोवाइड यू विद वन लिस्ट। यस, सो यू जस्ट गो थ्रू दैट लिस्ट। एलिमेंट फॉर्म करता रहता है, तो उसमें आप फ्लेम का यूज करना वहां पर थोड़ा हैजर्डस हो सकता है, प्रॉब्लम होता है, आपका वेल्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपका ये सब दिस आर द 3 फ्लेम्स। यस, नथिंग मच टू नो अबाउट इट। एक होता है गैस वेल्डिंग, आपका 2 टाइप ऑफ हो सकता है, एक है लेफ्ट हैंड एंड एक है राइट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड का क्या हो रहा है, आप जिस डायरेक्शन पे वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप सपोज ठीक है, उसको फॉरवर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं। मतलब अगर वो जा रहे हो एंड आपका आर्क भी, तो आपका आर्क किस तरह, आपका टॉर्च के एंड में आप आर्क समझ लीजिए। ठीक है, तो वो आर्क किस तरफ कर रहा है, आपकी वेल्डिंग डायरेक्शन पे ही मूव कर रहा है। मतलब देखिए, आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। यस, दिस वन यू आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आपका आर्क भी व्हाट गोइंग इन द वेल्डिंग डायरेक्शन। एंड हियर आपका क्या हो रहा है, यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट आपका आर्क अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। और आपका आर्क किस पे फोकस कर रहा है, आपका आर्क टुवर्ड्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग फोकस है। यस, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है, आप कैसे करते जा रहे हो, क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है। ठीक है, तो जनरली लेफ्ट हैंड एंड राइट भी नहीं है। तो ये आपको को मैंने दिया है क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रेशर और हॉजेस उस दिन बताया था क्या क्या आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स आ सकते हैं। एक होता है पोरोसिटी, पोर फ्यूजन। अगर आप एनफ हीट नहीं दे तो दोनों प्लेट गलेगा ही नहीं, या फिलर मेटेरियल अच्छे से, फिलर मेटेरियल तो गलना है ही। तो ये होता है वेल स्पैटर, वही होता है जो स्लैशेस टाइप ऑफ आपका मैं आप लोगों को शायद एक ऑलरेडी डिफेक्ट्स करके एक ऑलरेडी अनदर पीपीटी दी हूँ। ठीक है, एक होता है ये वाला, क्या होता है जो स्प्लैशेस टाइप ऑफ होता है, पानी को आप अगर ज्यादा खोल दिए तो ये ज्यादा स्प्लैशेस होंगे। सिमिलर इज द केस, आप अगर हाई करंट लॉन्ग आर्क लेंथ रहते हो तो डिस्टेंस मिल जाता है, तो स्पैटरिंग ज्यादा होता है। वो दिस इज एक्चुअली आपका मेटल जगह पर फोकस होना चाहिए था, आर्क जगह पर फोकस होना चाहिए था, वो ना हो गए थोड़ा स्पैटरिंग टाइप ऑफ होता है। दैट इज द मोस्ट कॉमन वेल डिफेक्ट एक्चुअली। ठीक है,
पोरोसिटी एक प्रॉब्लम हो सकता है, यस। एंड आर्क ग्लो होता है जहां पर अगल बगल में, अगर मैंने उस दिन बताया था, आर्क आपका स्ट्रेट लाइन पे फोकस होना चाहिए, ठीक है, टॉर्च टू द प्लेन। बट क्या होता है, अगल बगल में अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स है, सिंस इट इज हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इट गेट योर आर्क गेट attracted towards that magnetic attraction, yes, towards the magnetic field। तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें आप उसको आर्क ग्लो कहते हैं। मतलब when the arc get deviated from its main position, this is mainly called the arc glow, yes। जो जब मैं इसको पढ़ाऊंगी आप लोगों को, जब mainly forces पढ़ाऊंगी, then I will be showing you with the diagram, yes। Just now I will be just summing up you with the main building processes so that you people can also decide which topic to choose, yes। तो आर्क ग्लो एक प्रॉब्लम है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोर प्रॉब्लम। उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, अगल बगल में कोई लाइट का फोर्स ना हो, कोई मैग्नेटिक फोर्सेस ना हो, यस, एक्सेप्ट योर टॉर्च एंड एक्सेप्ट योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। मतलब आपका जो जहां पर अर्थिंग वगैरह ना हो, आप वेल्डिंग सेटअप वहां ना करो जहां पर अर्थिंग होता है, ठीक है। तो वो सब आप लोगों का एक प्रॉब्लम हो सकता है। एक होता है पोर फ्यूजन, अगर प्लेट आपका बहुत ठीक है और आपने बहुत कम करंट यूज कर लिया तो दोनों प्लेट गलेंगे ही नहीं, या आपने बहुत हाई स्पीड कर लिया तो भी क्या होगा, तो भी जो हीट उसको मिलना चाहिए था वहां ना मिलके जस्ट पास थ्रू इट, यस। सो आपका उससे आपका हीट, वो उसको सफिशिएंट हीट मिला ही नहीं, तो इमीडिएटली वो पास करके चला गया हाई स्पीड। तो जो हीट उसको मिलना चाहिए था एक स्पेस को, उसको मिला नहीं, तो वो क्या होगा, वो फ्यूजन आइदर पुअर फ्यूजन होगा, मतलब एनफ फ्यूजन नहीं होगा वो दोनों प्लेट ज्वाइन हो सके, या तो फिर फ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाउ। तो आप लोग को उसमें आप लोग, इसलिए जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, दो प्लेट को हम लोग लेते हैं, हम तो नहीं जानते कौन से करंट में या कौन सी वेलोसिटी में, या तो फिर आइदर कौन से मतलब बाकी सब पैरामीटर्स में कौन से में ये वेल्डिंग प्रॉपर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं, हेलो एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सपोजिटली मेरा करंट रेंज है 1 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक, और मेरा प्लेट थिकनेस सपोजिटली 2 mm है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं 1 एम्पियर से शुरू करते जाऊंगी, मैं देखूंगी कि बाकी सब पैरामीटर्स कांस्टेंट, सपोजिटली वेल्डिंग स्पीड मैंने 4 mm पर सेकंड पे कांस्टेंट रख दिया, मैं 1 एम्पियर करूंगी, मैंने देखा कि नहीं सिर्फ हीटिंग हो रहा है, दोनों प्लेट यूज नहीं हो रहा है, उसके बाद मैं इंक्रीज करते जाऊंगी 2 mm 3 mm, ठीक है। तो एक टाइम के बाद मुझे लगेगा कि मेरा प्लेट 3 एम्पियर के साथ वो गलने लगा है, बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट, तो मैं 3 एम्पियर के साथ वो करती जाऊंगी, 3 4 5 6। तो एट द एंड मेरा क्या होगा, 6 में आके मेरा प्लेट वेल्डिंग दोनों फ्यूज तो हो रहा है, वो क्या होगा ना, होल्स टाइप का बर्न्स होने लगेगा। मतलब मेरा प्लेट इतना थीन है कि इट इज नॉट एबल टू सस्टेन मोर आपका हीट, यस, 6 एम्पियर से ऊपर वो ले ही नहीं सकता हीट, ठीक है। तो वो मेरा प्रॉब्लम हो गया, यस। तो ये हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. आपका Yes, वॉइस ma'am. डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ वो मेरा पता नहीं नेटवर्क इश्यूज होता है। चले, ये क्या होता है आप लोगों का, मैं क्या बता रही थी, मैम आप 6 लोग का- एम पे मेल्ट हो जाता है। हाँ सपोजिटली मेरा प्लेट थीन है, ठीक है, 2 mm में मेरा 3 वेल्डिंग से लेकर 6 वेल्डिंग तक, 6 एम्पियर तक, 3 एम्पियर से लेकर 6 एम्पियर तक मेरा वेल्डिंग करंट है। वो रेंज मेरा ऐसा है कि मैं कहीं पे भी करूंगी तो मेरा गुड वेल जॉइंट आएगा। वो मैं कैसे टेस्ट करूंगी, बाय टेंसाइल टेस्टिंग, बाय हार्ट टेस्टिंग, या आंखों से देख के विजुअल टेस्टिंग, या तो फिर कोई रेडियोग्राफी टेस्ट कर लिया, या तो फिर कोई अल्ट्रासोनिक टेस्ट कर लिया, ठीक है। उससे मैं पता करूंगी कि मेरा 3 बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट 2 mm प्लेट को, 2 mm स्टील प्लेट को, टाइटेनियम के लिए वो अलग हो जाएगा क्योंकि टाइटेनियम का कंडक्टिविटी वगैरह अलग होता है, yes। So depending on the material used,
Yes, and that all other parameter constant, मेरा वेल्डिंग कहाँ पर आया है, 3 to 6 एम्पेयर पे आया है. उससे नीचे होगा तो मेरा पुअर फ्यूजन हो गया, उससे ज्यादा होगा तो मेरा क्या होगा, बर्न थ्रो होगा. यस, सो मैं उसी रेंज को पकड़ूंगी और उसी रेंज में मैं ऑप्टिमम को फाइंड आउट करूंगी. सिमिलर द केस, सपोजेटली आपने फाइंड आउट किया 3 to 6 इज माई वेल्डिंग करंट. आप अभी उसके मिडिल में आपने 5 एम्पेयर को ले लिया कि दैट इज माय बेस्ट करंट, मतलब टेस्टिंग वगैरह करके, ठीक है. उसको आप कांस्टेंट रखें और स्पीड को चेंज करते जाइए. तो कम स्पीड का मतलब है आपका टॉर्च एक जगह पर ज्यादा अमाउंट ज्यादा देर के लिए अवेलेबल है. यस, मतलब इट इज गिविंग मोर हीट टू द सेम प्लेस. अगर स्पीड ज्यादा है तो इमीडिएटली वो पास आएगा, मतलब एक जगह को वो टॉर्च कम टाइम के लिए रह रहा है, मतलब हीट कम टाइम के लिए दे रहा है. इसीलिए क्या होगा, इसीलिए आपका उसका पुअर फ्यूजन होने का चांसेस है या पुअर हीट ट्रांसफर होने का चांसेस है. यस, सो हायर इज द स्पीड, लेस विल बी योर पेनिट्रेशन. यस, आपका पेनिट्रेशन कम होता जाएगा क्योंकि एक जगह पे हीट कम देर तक रह रहा है, वो पास होके सेकेंड जगह पर पहुंच गया है. ठीक है, so that is how you are deciding how your process parameters, you have to think of it, how your process parameter is affecting it. तो मैं ऐसे लिया, मैंने रन किया तो क्या होगा, मेरा बहुत सारा क्या होता है ना, तब बहुत सारा मटेरियल वेस्ट होता है. तो आजकल क्या करते हैं, आजकल सिमुलेट कर लेते हैं बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट. एक रफ आइडिया हो सकता है मेरा 3 एम्पेयर सिमुलेशन में निकला, नहीं भी हो सकता है, 4 एम्पेयर हो सकता है, बट आपको एक रेंज तो मिल गया. यस, एक रेंज मिल जाता है. हम लोग वहां से शुरू करते हैं, 1 एम्पेयर से ना शुरू करके और या बाउंड्री रेंज में नहीं जाते हैं, तो हम लोग का जो मटेरियल वेस्ट है वो भी सेव हो जा रहा है. ठीक है, तो सिमुलेट हम लोगों ने कर लिया. उस हिसाब से हम लोग हमारा डिफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करके आज तो सब सिमुलेट करके ही डायरेक्ट वेल्डिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ आपका डिफेक्ट्स हो गया. एक हो गया पुअर फ्यूजन, यस, कम करंट या हाई स्पीड, या आपका इलेक्ट्रोड डायमीटर इम्प्रॉपर हो गया. यस, सो आपका जॉइंट कंटामिनेटेड हो गया, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन में टेम्परेचर सपोजिटली ज्यादा लगा लेकिन एल्यूमिनियम का टेम्परेचर आपने डाला. सो वो सब मिला जुला के आपका पुअर फ्यूजन हो सकता है. शैलो पेनिट्रेशन इज ऑल्सो सेम थिंग. मैंने आप बताया, अगर हायर स्पीड रख रहे हैं या आप बहुत ज्यादा कम करंट दे रहे हो, या आप मतलब आप इलेक्ट्रोड प्रॉपर डिपोजिशन रेट को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हो इन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज हो सकते हैं. You have to think of it. If a question is asked, you have to think, okay, this is the questions and that is the answer. Yes, so आपको पूछा जा सकता है कि अगर मैंने इलेक्ट्रोड डायमीटर बहुत हाई कर दिया तो मेरा डिपोजिशन रेट कमेगा या ज्यादा होगा. Yes, so you have to think of it. Yes. उसके बाद क्रैकिंग हो सकती है. क्रैकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग. इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अगर एब्जॉर्ब कर ले, आप अगर अंडर वाटर कर रहे हो तो मेन डिफेक्ट हो सकता है कि हाइड्रोजन वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वाटर जैसे ही हीटेड अप होगा वो ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन एक एनवेलप फॉर्म करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने का चांसेस है वो वेल जॉइंट. तो वो हाइड्रोजन क्रैकिंग हो जाता है. हाइड्रोजन क्रैकिंग क्या करता है, हाइड्रोजन को एंट्रैप रखता है. थोड़ी देर बाद वो हाइड्रोजन निकलने का कोशिश करता है, वो क्रैक फॉर्म करता है क्योंकि दैट इज ए फॉरेन एलिमेंट. वो क्रैक फॉर्म करके वो आपने वो प्लेट को रख दिया, थोड़ी देर बाद वो क्रैक प्रोपागेट करेगा जैसे ही आप उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बिएंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर से क्रॉस किए. ठीक है, तो वो एक सडन डिफेक्ट है. क्रैकिंग इज अ डिफेक्ट. और आपका क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बोला था, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है. जैसे ही दोनों चीज मेल्ट हुआ, मैं एक डायग्राम के थ्रू इफ आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल बी अंडरस्टैंडिंग. मतलब आपका क्या हुआ, 2 प्लेट का बस जॉइनिंग, जहां पर आपको वेल्डिंग करना है, लोकलाइज्ड आपका वहां पर मेल्टिंग होता है एंड लोकलाइज्ड सॉलिडिफिकेशन होता है. तो वहां पर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो वहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं. और अगर स्ट्रेसेस यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा हो गया, वो क्या करता है, स्ट्रेसेस को एब्जॉर्ब करके रख देता है. ठीक है, और ठंडा होने के बाद वो प्लेट खुद ब खुद बैंड कर देता है टू एकोमोडेट द स्ट्रेसेस एब्जॉर्ब अबाउट द यील्ड स्ट्रेस. यस, सो उसको रेसिडुअल स्ट्रेस बोलते हैं, जो वो एब्जॉर्ब करके रख देता है और जिसके कारण वो बैंड हो जाता है. फ्लैट प्लेट भी बैंड हो जाता है. ठीक है, तो वो जो स्ट्रेसेस जनरेट हुए, वो स्ट्रेसेस एक्चुअली आपके प्लेट को क्रैक भी कर सकते हैं. वो प्लेट, आप प्लेट के डिस्टॉर्शन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिफेक्ट एंड इट इज द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन. का मतलब है प्लेट बैंड हो गया. यस, बेंडिंग, उसको डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कॉमन डिफेक्ट. यस, ये कैसे होता है,
आपका अगर वहां पर कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब आप कम ही टाइम पे पीक टेम्परेचर आपका बहुत हाई हो रहा है और बहुत ज्यादा वो इमीडिएटली कूल डाउन भी हो रहा है, बहुत हाई। थिन प्लेट में जनरली वो प्रॉब्लम, मोटा प्लेट में क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, धीरे धीरे वो हीट कॉन्डक्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई चला गया फिर इमीडिएटली कूल डाउन हो गया, क्योंकि प्लेन बहुत थीन होता है, वो हीट को इमीडिएटली क्या करता है, कॉन्डक्ट अवे करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां पर स्ट्रेसेस ज्यादा जनरेट होते हैं, और यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा अगर स्ट्रेस है वो क्या करता है, कुछ स्ट्रेस को वो अपने अंदर रिलीज, यील्ड स्ट्रेस के नीचे है तो क्या होगा, जैसे ही ठंडा होने लगेगा वो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, बट यील्ड स्ट्रेस से ऊपर अगर है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ठंडा होने के बाद भी वो स्ट्रेस को रिलीज नहीं कर पाता, तो क्या होता है, वो बैंड हो जाता है, दैट बैंडिंग इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। यस, so that is another kind of study not relevant to you, but you just remember what are the main kind of defects, मैम पोरोसिटी type डिफेक्ट of को समझा दीजिए। joints। मैम पोरोसिटी डिफेक्ट को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। पोरसिटी आपका जो पोरस मतलब आपका क्या होगा, जैसे ही वेल्डिंग क्या पोर, जैसे कास्टिंग में भी आपका पोरसिटी डिफेक्ट आ रहा था, उसका मतलब है इट इज एब्जॉर्बिंग गैसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो एग्जॉस्ट आर्क आपका मेनली डिफ्लेक्ट हो रहा है, आर्क आपका क्या कर रहा है, स्पेस दे रहा है आपके मेन वेल्डिंग जॉइंट, आपको सपोजिटली स्ट्रेट लाइन में आपको वहां पर गिरना चाहिए था, तो आर्क तो डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरफ गिर गया या उस तरफ गिर गया। यस, तो क्या होगा, आपका आर्क आपके उसको डिफेक्ट्स गैसेस को, जो एग्जॉस्ट गैसेस हमेशा ही फॉर्म होता है और फ्यूम्स फॉर्म होते हैं, गैसेस फॉर्म होते हैं वेल्डिंग में, क्योंकि टेम्परेचर रेंजेस, तो वो को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसके अंदर पोर्स टाइप ऑफ रहना शुरू कर देता है। जब आप माइक्रोस्ट्रक्चर टेस्ट देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें अलग अलग करके थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है अंदर, आपको जो विजुअल टेस्टिंग से आपको पता नहीं चलेगा, आपको उसको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, माइक्रोस्ट्रक्चर टेस्टिंग, तब आपको पता चलेगा छोटा छोटा गड्ढा हो गया, माइक्रोस्ट्रक्चर के अंदर एक अनवांटेड पोर्स रह गए हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो अगर आर्क मेनली कॉज बाय आर्क ग्लो, क्योंकि वो इधर उधर जा रहा है, तो वो गैस को एंट्रैप करने के लिए, गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए चांसेस दे रहा है। मैंने जैसे कहा हाइड्रोजन को भी एंट्रैप, तो उसके कारण भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पोर्स हो सकते हैं। यस, तो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस व्हाई दिस एक्चुअली, जब गैसेस को एंट्रैप कर रहे थे तो वो पोर्स फॉर्म हो, which is actually unwanted and is a defects. Yes, types of groups आप लोग लिखेगा, consumable electrode। मैम अगर इसमें जैसे इनर्ट गैस देते हैं हम लोग सील्डिंग के लिए, तो अगर इनर्ट गैस भी एब्जॉर्ब होता है कि नहीं होता है अंदर में? इनर्ट गैस इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर। नहीं मैम, अंदर एब्जॉर्ब होता है क्या होल में, मतलब कहीं जा करके जैसे डिफेक्ट करने के लिए? If they are non reactive, how can they get absorbed? ऐसे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ना। इनर्ट गैस can create any kind of problem. Yes. एब्जॉर्ब का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन ऐसे ही नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, हाइड्रोजन को वो रिएक्ट करना पड़ेगा, कंपाउंड फॉर्म करना पड़ेगा वो गैसेस को, ठीक है। वो एब्जॉर्ब रह के वो एंट्रैप रह सकता है, बट इनर्ट गैस आई डोंट थिंक इट विल बी क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मैम उससे रिएक्शन नहीं होगा? यस, रिएक्शन नहीं होता है ना, देयर इज नो काइंड ऑफ रिएक्शन। यस मैम, उससे रिएक्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? Ma'am, can you once again explain rightward and leftward welding difference? हाँ, राइटवर्ड एंड क्या होता है, राइटवर्ड में आपका मतलब राइट हैंड में आपका क्या हो रहा है, सपोजिटली आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है। मतलब आवर स्लाइड विजिबल? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, I think it was somewhere here only. ये वाला, आप ये वाला देखिए, आप सपोजिटली क्या कर रहे हो, आप राइट से लेकर आपका वेल्डिंग कहाँ से हो रहा है, ये जो आप ऐसे टाइप ऑफ देख रहे हो कि नहीं, वेल्डिंग आपका राइट से लेकर लेफ्ट तक जा रहा है। यस, यस और नो?
डायरेक्शन ऑफ वेल मेंशन किया हुआ है नीचे, देखिए ना, जिस डायरेक्शन पे वेल हो रहा है आपका टॉर्च उसी डायरेक्शन पे फोकस रख रहा है. यस, कुड यू सी? Yes, ma'am. यस मैम. कुड यू सी? हाँ, लेकिन आपका दूसरे में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन. 1 सेकेंड. दूसरे में क्या होता है, आपका अपोजिट डायरेक्शन पे वो फोकस कर रहा है. जस्ट लुक इनटू द डायग्राम योरसेल्फ. आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड यू द स्लाइड्स. जनरली द राइट हैंड ही हम लोग का ये जो है ना लेफ्ट, ये और ये वाला क्या कर रहा है, जो वेल्डिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पर आप देखिए फिलर मटेरियल को आप ऐसे रख रहे हो, मतलब आपका फिलर मटेरियल इज पॉइंटिंग अपोजिट टू द वेल्डिंग डायरेक्शन, बट हियर फिलर मटेरियल इज पॉइंटिंग, यहाँ पर आप कैसे कर रहे हो, लेफ्ट से राइट तक वेल्डिंग कर रहे हो, राइट वर्ड में. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग राइट वर्ड में वो है. टॉर्च का हमेशा सेम रहता है. यस, बस यहाँ पर आप देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ द वेल के ऑपोजिट जा रहा है. यहाँ पर आप राइट टू लेफ्ट वेल्डिंग कर रहे हो. डायरेक्शन ऑफ टॉर्च भी हमेशा उसी टाइप ऑफ पोजीशन पे है, मतलब टुवर्ड्स द वेल्डिंग में पॉइंट आउट कर रहा है. यस, और यहाँ पर आप कहाँ, यहाँ पर आपका आप देख रहे हैं. अलग होता है. यस, एंड आप उसको बोले हैं हम लोग, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एंड इट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन. यस, मतलब सॉरी, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं एंड आवर टॉर्च इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. जनरली टॉर्च का पोजीशन सेम रहता है. यस, तो लेफ्ट टू राइट वेल्डिंग करने से हम लोग को लेफ्टवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट करने से लेफ्टवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट करने से राइटवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं. ये तो इसको समझने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है आप लोगों को? मैम मतलब डिफरेंस क्या हुआ, बस ये डायरेक्शन का डिफरेंस है? नहीं, ये आप लोगों को जनरली जब आप लोग फोर्सेस पढ़ोगे ना, तो फोर्सेस को वो इफेक्ट करता है, क्योंकि आपका ये होता है कि सपोजिटली आप लोगों को वेल्डिंग चाहिए, हम लोग का ड्रॉपलेट्स के ऊपर, हम लोग को जो ड्रॉपलेट्स गिरता है ना, उसके फिलर मटेरियल जो गलता है. यस, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब जैसे कि एक फोर्स होता है कि आप अगर देख रहे हो तो फिलर मटेरियल क्या कर रहा है, फिलर मटेरियल आपका एक में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग, तो उसका जो ड्रॉपलेट गिरेगा वो क्या होगा, वो ज्यादा गलेगा अपोजिट टू द टॉर्च, डायरेक्शन ऑफ टॉर्च. यस, सो एंड आपका जो ये क्या बोलते हैं, राइट हैंड वेल्डिंग में आपका टुवर्ड्स द वेल ही है, सेम डायरेक्शन पे है, तो वो एक अलग डायरेक्शन पे ड्रॉपलेट्स गिरेगा. ठीक है, सो आपका वही होता है. ये डिपेंड करता है कि आप, ये मैं जब फोर्सेस पढ़ाऊंगी आई विल बी शोइंग यू, मतलब जैसे आप ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हो, उसके लिए आप लोग को सर्टेन फोर्सेस इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, एंड जब आप लोग ओवरहेड वेल्डिंग, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, जब सर के ऊपर से वेल्डिंग हो रहा है. यस, तो आप लोगों को एक सर्टेन टाइप ऑफ फोर्सेस ज्यादा होना की जरूरत है. और जो आपका जैसे आप अगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन मूव कर रहे हो टॉर्च को, ठीक है, तो द फ्लेम इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द फिनिश्ड वेल. यस और नो? आपका फ्लेम कैसा होता है, फिनिश वेल से एवे होता है कि नहीं? अगर आप फर्स्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, मतलब आप अगर लेफ्ट से सॉरी राइट से लेकर लेफ्ट तक वेल्डिंग कर रहे हो, आपका टॉर्च भी उसी डायरेक्शन पे मूव कर रहा है. ठीक है, टुवर्ड्स द अनवेल्डेड पार्ट. यस, एंड मतलब आपका वेल्डिंग फ्लेम
फोकस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सीम फॉर्म हो रहा है वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीम फॉर्म हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों का नहीं होता, मतलब डिफरेंस नहीं होता। मतलब आप लोग का बस ये होता है कि ये आपके जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, मतलब आप जैसे लेफ्ट वर्ड में आपका क्या करेगा, जो एजेस है, जो अनवेल्डेड पोर्शन है, उसको पहले आप लोगों को प्रीहीट करता जाएगा, क्योंकि टॉर्च उस डायरेक्शन पे मूव है। बट गैस वेल्डिंग में वो प्लेट को नहीं गलाता, गैस वेल्डिंग में मेनली फिलर रॉड को गला गला के गिरा रहा है, ठीक है। तो आप अगर लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो तो आपका प्लेट क्या हो रहा है, पहले आपके दोनों प्लेट्स के एजेस को वो रीच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि टॉर्च इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अनवेल्डेड पार्ट। यस और नो? आप पहले वाला डायग्राम समझिए, लेफ्ट आपने राइट टू लेफ्ट आपने टॉर्च को मूव किया, तो टॉर्च आपका कहां पर फोकस है, वेल्डेड पोर्शन पे फोकस्ड है या अनवेल्डेड पोर्शन पे फोकस है? अनवेल्डेड पे। अनवेल्डेड पे। तो ये क्या करता है, ये पहले आपके अनवेल्डेड पोर्शन को एक हीटिंग देता है, और फिलर मटेरियल उसके बाद आता है, उसके बाद फिलर मटेरियल को वो गलाता है। यस, इट प्रीहीट्स द जॉइंट्स। यस, तो आपका उसके बाद वो फिलर मटेरियल कर रहा है। यस, क्योंकि आपका यहाँ पर मेन होता है, दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग डज नॉट, ये वी ग्रूव या कुछ एक ग्रूव दिया जाता है, यहाँ पर प्लेट जनरली ज्यादा मेल्ट नहीं होता, यहाँ पर फिलर मटेरियल ड्रॉप करते करते ही, दिस इज अ मेन मैकेनिज्म, बिकॉज इसका हीट कम होता है, ठीक है। तो इट प्री हीट्स द प्लेट, ठीक है। तो सर्टेन काइंड ऑफ, जैसे कि आपका सरफेस टेंशन फोर्स हुआ या कुछ हुआ, उसको वो ज्यादा एग्रीवेट करता है। वो जब फोर्सेस थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, देन आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यस, यहाँ पर उसके बाद फिलर मटेरियल पे फोकस होता है, बट इन द अदर टाइप इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेल जॉइंट। यस, तो वो प्लेट को प्रीहीट नहीं करता, वो डायरेक्ट फिलर मटेरियल को प्रीहीट करता है। तो जनरली कहा जाता है इन लेफ्ट हैंड वेल्डिंग आपका गुड कंट्रोल रहता है, क्योंकि आप प्लेट को पहले हीट कर रहे हो, उसके बाद फिलर मटेरियल, तो फिलर मटेरियल वहां पर गल गल के ज्यादा अच्छे से गिर रहा है, ठीक है। तो जो अपीयरेंस आपको मिल रहा है, ठीक है, उसका वो बेटर होता है, या जो आपका वेल जॉइंट जो हो रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बेटर होता है, ठीक है, वो माना जाता है। और जनरली वो क्या होता है, आपका लेफ्ट हैंड वो प्री हीट ही करता जा रहा है ना, तो वो हम लोग उसको हम लोग, क्योंकि हम लोग का जनरल बाकी सब वेल्डिंग आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड ही होता है। टॉर्च हमेशा आइदर स्ट्रेट फोकस करता है, नहीं तो एट एन एंगल वो फोकस करता है, ठीक है। तो वर्टिकल वेल्डिंग जनरली हम बाकी सब में यूज करते हैं, बट इन गैस वेल्डिंग वी कैन नॉट यूज, बिकॉज द दोनों जो फिलर मटेरियल वो जो है वो दोनों द अपोजिट डायरेक्शंस पे हमेशा होना ही होगा, बिकॉज ये फिलर मटेरियल को गला गला के मेनली द flame is focused to the filler material. In other welding, the flame is focused vertically towards your प्लेट। यस, सो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड देते हैं। जनरली बोला जाता है कि लेफ्ट हैंड में बेटर वेल्डिंग फॉर्म होता है, क्योंकि ये प्लेट को भी हल्का सा गला लेता है, उसके बाद वो वहां पर वो देता है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस तो आई डोंट नो, बट दिस इज जनरली फाउंड आउट कि हम लोग का ये बेटर वेल्डिंग होता है, विच इज जनरली आप लोगों का वही वेल्डिंग से जनरली प्रेफरेबल होता है। दिस इज द प्रेफरेबल काइंड ऑफ वेल्डिंग। इन राइट वेट वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग बिगिंस एट लेफ्ट हैंड एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द राइट। यस, सो क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। यस, सो आपका इसको फ्लेम को पहले, फ्लेम इज क्या होता है, द फ्लेम इज बिटवीन द, मतलब जो आपका फिलर मटेरियल होता है वो फ्लेम एंड वेल्डिंग सेक्शन से पहले होता है, मतलब आपका वो फिलर मटेरियल को सबसे पहले गलाता है। यस और नो? दूसरा वाला चीज क्या होता था, फ्लेम आपका यहाँ पर क्या है, इन राइट वर्ड में द फिलर मटेरियल जो है यहाँ पर फ्लेम और वेल्डिंग सेक्शंस के मिडिल में है। आप अगर राइट हैंड का डायग्राम देखो, सी दिस डायग्राम, कि आपका ये डायग्राम क्या हो रहा है, द फ्लेम इज बिटवीन, सॉरी, द फिलर मटेरियल इज बिटवीन द फ्लेम एंड द वेल जॉइंट। इन द अदर केस आपका फिलर मटेरियल बाहर है और वेल जॉइंट अंदर है, मतलब पहले है फिलर मटेरियल, मिडिल में है फ्लेम एंड एट द एंड आपका प्लेट है। यस, द फ्लेम इज बिटवीन द वेल प्लेट एंड द फ्लेम। यस, सो ये साइमल्टेनियसली हीटिंग कर रहा है दोनों को। बट इन दिस आपका क्या हो रहा है, इन दिस राइट हैंड का ऊपर में फिलर मटेरियल रह रहा है और नीचे में आपका क्या हो रहा है,
नीचे में आपका यहाँ पर आपका फिलर रॉड रिमेन्स बिटवीन द फ्लेम एंड द कंप्लीटेड जॉइंट। सो यही माना जाता है कि ये प्लेट, ये वेल्डिंग सेक्शन को कोई हीट बीट नहीं करता, डायरेक्टली फ्लेम को उसके ऊपर डालता है, तो इसके कारण ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये डायरेक्ट फ्लेम को कर रहा है, यस, नथिंग मच डिफरेंस होता है। एंड आई एम ऑल्सो अनअवेयर, बिकॉज यही मैं डिफरेंस जानती हूँ कि हम लोग जनरली लेफ्ट हैंड को प्रेफर करते हैं, एंड द हियर इन द राइट हैंड आपका फिलर रॉड इज बिटवीन द टॉर्च एंड द फ्लेम। यस, वो फोर्सेस को इफेक्ट करता है क्योंकि वो डायरेक्टली फिलर मटेरियल को गलाता है, वो अपने प्लेट को कुछ हीट वीट नहीं करता, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचाता, इसके लिए वो फ्यूजन उसमें प्रॉपर नहीं हो पाता, और उसका क्या होता है, उसका जो हम लोग का जो वेल जॉइंट फॉर्म होता है, इट इज लोअर इन क्वालिटी। यस, Okay, ma'am, I get the idea. And ma'am, one more question was there. Ma'am, how do we provide filler material in overhead weldings? हम लोग फिलर मटेरियल जनरली ओवरहेड वेल्डिंग में हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। हम लोग को फोर्स को जनरली मतलब हम लोग ओवरहेड वेल्डिंग में डिफरेंट ही क्राइटेरिया हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग को उसमें फोर्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ठीक है, तो हम लोग को ऐसा कुछ करना होगा, हम लोग को ऑप्टिमाइज ऐसे करना होगा ताकि वो इमीडिएटली गले, मतलब स्पीड थोड़ा हाई हो, यस, स्पीड ऑफ द वेल्डिंग थोड़ा हाई हो। फिलर मटेरियल में एक ओवरहेड वेल्डिंग का एक डायग्राम शायद आप लोग को पहले प्रोवाइड की थी, आप इफ यू गो थ्रू द स्लाइड, आप लोग का वहां क्या होना होगा, इमीडिएट मतलब आप लोग को ऐसा करना होगा कि इट कूल्स डाउन इमीडिएटली, ठीक है, तो आप जब से फिलर मटेरियल को गला रहे हो तो उसको ये होना होगा, द फोर्सेस शुड बी सच दैट और द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोसेस पैरामीटर शुड बी सच दैट ये इमीडिएटली गल जाए, immediately वो solidify हो जाए। yes, it does not take much time to solidify, so you have to make the environment in such a कि आपका वो ओवरहेड, जैसे फिलर मटेरियल डिपोजिशन रेट को आपको यहाँ पर मेनली डिपेंड करता है, डिपोजिशन रेट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन फ्यू फोर्सेस। यस, सो बॉयंसी फोर्सेस को आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, बॉडी फोर्सेस को, ताकि वो अपनी तरफ ज्यादा खींचे। यस, एंड बाकी जो फोर्सेस है, सरफेस टेंशन फोर्स को वो ज्यादा रखनी होगी ताकि वो गिरने के लिए वो ना दे, ठीक है, तो यू हैव टू कीप द डिपोजिशन इन सच ए वे दैट बुओयेंसी एंड सरफेस टेंशन का हाईएस्ट सरफेस टेंशन क्योंकि आपका प्लेट उल्टा है, यस, तो सरफेस टेंशन फोर्स कैन प्रिवेंट फ्रॉम द लिक्विड टू ड्रॉप, यस, तो आपको उसको हाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपको फिलर मटेरियल को इन सच ए पोजीशन रखनी पड़ेगी जहां पर वो जो सरफेस टेंशन ऑफ द प्लेट है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा वहां पर वो ज्यादा हो। यस, सो आप लोगों का यहाँ पर सो ऐसे ही हम लोग फिलर मटेरियल को रख सकते हैं। यस, तो वहां पर सरफेस टेंशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो आप लोग को ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोसेस पैरामीटर ऐसा करना होगा कि सरफेस टेंशन फोर्स एज वेल एज द बुओयेंसी फोर्स आपका वहां पर ज्यादा जनरेट हो, ताकि आपके ओवरहेड वेल्डिंग को वो हेल्प करे। यस, जब फोर्सेस पढ़ाएंगे तो एक एक लाइन आपके नीचे में लिखा रहेगा, दिस सपोर्ट्स ओवरहेड वेल्डिंग एंड दिस इज अगेंस्ट द ओवरहेड वेल्डिंग। यस, दिस इज ऑल दिस फोर्सेस। यस, सो आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो दो फोर्सेस ज्यादा हो, सो दैट आप लोग को वो गलाने के वो नीचे ड्रॉपलेट्स बन के वो नीचे ना गिर के इमीडिएटली वो ठंडा हो जाए, या वो फोर्स उसको बंद करे। यस, और मैम जो वेल्डिंग में हम लोग कंज्यूमेबल फिलर रॉड यूज करते हैं वो मेटल से टच होती है, मतलब वर्कपीस से टच होती है कि थोड़ी सी फ्लोटिंग रहती है? वो तो जो आपका नॉर्मल शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, जो जनरल मैंने बोला था ना, जहां पर अलग से टॉर्च वगैरह नहीं होता, बताया था शायद, तो उसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट द इलेक्ट्रोड ही, मतलब फिलर मटेरियल इज द इलेक्ट्रोड। यस, मेनली तो उसको आपको पॉजिटिव टर्मिनल से सपोजिटली कनेक्ट करवा दिया, उसको टच करके आपको थोड़ा डिस्टेंस में ले जाना पड़ेगा। टच इज नेसेसरी फॉर द इनिशिएशन ऑफ द आर्क। उसके बाद आप लोग को एक आर्क में उसको रखना, आर्क लेंथ में उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड पे आपको फिलर मटेरियल वगैरह चिपका के नहीं रखते, वो थोड़ा सा डिस्टेंस में रखते हैं। चिपका के रहेंगे तो वो तो वहां क्लॉग हो जाएगा, द फिलर मटेरियल विल बी क्लॉगिंग।
but in SMAW मतलब शीलन मेटल आर्क वेल्डिंग या जनरल मेटल आर्क वेल्डिंग आप लोग क्या होगा, टच करके थोड़ा सा डिस्टेंस पर लाना पड़ेगा, वो दैट इज द फिलर मटेरियल इटसेल्फ। बट दूसरा फिलर मटेरियल अदर देन द इलेक्ट्रोड आप अगर यूज कर रहे हो उसको एक डिस्टेंस देनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल, आप खुद ही सोचिए एक वो सपोजिटली आप उसमें उसको गला गला के कर रहे हो, अगर डिस्टेंस नहीं रखोगे दैट विल बी ट्राइंग टू क्लॉक डाउन। यस, तो जो डिपोजिट हो रहा है ड्रॉपलेट्स बॉन्ड बन के वो आपके प्लेट में गिरना चाहिए, ना कि जो अनवेल्डेड फिलर मटेरियल है, जाके अनमेल्टेड फिलर मटेरियल है वो थोड़ा डिस्टेंस में ही रहना होगा। यस, तो सर्टेन काइंड ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ इज इंपॉर्टेंट। यस, नहीं तो क्लॉक कर जाएगा ना, अनवेल्डेड वेल्डेड सब मिक्स कर जाएगा। मैम फिलर मटेरियल और वर्कपीस में अगर डिस्टेंस रहेगा तो ओवर द हेड में तो नीचे गिरती रहेंगी सारी ड्रॉपलेट्स, तो डिपोजिशन रेट 0 हो जाएगा। नहीं, हम लोग जनरली जो ओवरहेड वेल्डिंग का करते हैं उसमें हम लोग फिलर मटेरियल हम लोग, मैं क्वेश्चन नहीं समझे, मतलब चिपकते तो कभी नहीं रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस में ही रहेगा, हम लोग के नीचे ना गिरे, तो हम लोग फोर्सेस को उस टाइप ऑफ, हम लोग के फोर्सेस को उस टाइप ऑफ रखते हैं, समझ गए। एक यू कैन लुक इनटू एनी काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोस, और अभी समझाना मुश्किल है क्योंकि वो आपका क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, फिलर मटेरियल कैसे चिपकता रहेगा, वो अनवेल्डेड पार्ट तो उसमें क्लॉक कर जाएगा ना। मैम मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर ओवर द हेड वेल्डिंग कर रहे हैं और फिलर मटेरियल और वर्कपीस में थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो अगर फिलर मटेरियल मेल्ट होगा तो वो तो नीचे गिरेगा ना, वर्कपीस पे थोड़ी ना जाएगा। नीचे नहीं गिरेगा ना, उसका फोर्सेस रहेंगे ना, आपका जो डिपोजिशन रेट है वो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, द फोर्सेस। आप अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हुआ वो अपने तरफ खींचेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस हुआ तो वो नीचे गिरने के लिए करेंगे, है कि नहीं। तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कुछ कुछ होते हैं एंड द नीचे गिरने वाले फोर्सेस कुछ कुछ होते हैं। यस, जैसे आप फिलर मटेरियल को उल्टा रख दिए, अगर वो अपने तरफ ड्रॉपलेट्स को अपने तरफ खींच के इमीडिएटली वो मतलब वेल्डिंग जो कूलिंग टाइम है वो इमीडिएट हो रहा है, हम लोग ऐसा कुछ अरेंजमेंट्स कर दे जहां पर कूलिंग इमीडिएट हो, जैसे प्लेट वेल्डिंग हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम लोग क्या करें, हम लोग का प्लेट इमीडिएटली वो कूल डाउन हो गया। यस और नो, तो हम लोग का मेनली फोर्सेस का खेल होता है ना, अट्रैक्ट करता है, ड्रॉपलेट्स को नीचे नहीं गिरने देता है। वो आप जो सोच रहे हो बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट्स करके नीचे गिरा, वैसा टाइप ऑफ वेल्डिंग नहीं होता है ना, वो एक्चुअली ऑल दिस हैपेंस विद इन अ मिली सेकेंड्स। यस, सो आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पर डेवलप करनी पड़ेगी, द फोर्सेस व्हिच अट्रैक्ट्स द ड्रॉपलेट्स टुवर्ड्स देमसेल्फ एंड नॉट अवे। रिपल्सिव फोर्सेस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस, टू टाइप ऑफ फोर्सेस होंगे, जैसे बुएंसी फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन फोर्सेस विल अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स देमसेल्फ। यस, बाकी सब जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक, वो आपको इट विल रिपल्सिव, मतलब वो नीचे गिरने के लिए मदद करेगा, ठीक है। द डिपोजिशन विल बी हैपनिंग इमीडिएटली। यस, So we will use electrostatic forces to overcome the gravitational force. ऐसे करना पड़ेगा ताकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस को आप ओवरकम कर पाए। यस, सो फ्यू फोर्सेस है, मैं आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास में या मैं एक्चुअली चाह रही थी सारा वेल्डिंग प्रोसेस एक ही बार कर लूं ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह होगा, क्योंकि और वेल्डिंग प्रोसेस बाकी है, सॉलिड स्टेट मतलब और बहुत सारा लेजर इलेक्ट्रॉन भी मेन वेल्डिंग प्रोसेसेस बाकी है, लेकिन ये फोर्सेस समझना इंपॉर्टेंट है। सो मे बी टुमारोज क्लास आई विल बी फर्स्ट टीचिंग यू द फोर्सेस, यस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड समव्हाट। यस, एकदम इन डेप्थ फोर्सेस का तो कैलकुलेशन समझ जाना मुश्किल होगा, देन वो है बात, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक मेन फोर्सेस होता है जिसके वजह से तो वी हैव टू क्रिएट द फोर्सेस इन सच ए वे जो उसको अपनी तरफ खींचे, ना कि वो ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ज्यादा ओवरकम करना पड़ेगा। यस, यस मैम, अंडरस्टूड। ओके, कल मैं फोर्सेस करूंगा, एक्चुअली बाकी सब वेल्डिंग प्रोसेसेस एक बार करने के बाद फोर्सेस समझाने से इजी होता है। सो टुमारो आई विल बी डायरेक्टली टचिंग यू द फोर्सेस पार्ट। ओके ma'am, on which basis do we decide the flame, ma'am? For, as you said, for ferrous materials we use carbon monoxide, like that. Carbon monoxide is an exhaust gas which is formed. Ma'am, please share the chart you were telling about, which type of flame for which type of metal. But one girl was asking some question. I didn't understand her question. What she was asking? This was only her question. Huh? She was asking different type of flame for
steel and all. ओके ओके, ये एक होता है, वो जनरली हम लोग न्यूट्रल फ्रेमिंग, जैसे हम लोग यहाँ पर भी आप लोग को करके दिखाएंगे, यस, तो वो जनरली हम लोग न्यूट्रल फ्रेम, ताकि कोई रिएक्शन ना हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग जनरल अगर 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से टाइप ऑफ फ्लेम हम लोग को चाहिए। जनरली हम लोग न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ब्रास एंड ब्रोंज के लिए आपको ऑक्सी एसिटाइलिन मतलब फ्रेम जनरली यूज होता है। जनरली गैस भी हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पर एसिटाइलिन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग फेरस है, फेरस का मेन है FeC, तो उसमें ऑलरेडी कार्बन कॉन्टेंट्स है, जब वो मेल्ट करेगा, ब्रेक करेगा, तो कार्बन कॉन्टेंट्स ऑलरेडी निकलेगा, तो वो आइदर वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो एग्जॉस्ट गैस ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं रेदर देन वेल्डिंग, तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। सिमिलरली उसमें अगर कार्बन कॉन्टेंट ज्यादा है, कार्बोनाइजिंग है, तो हम लोग उसको भी वो रिएक्ट करके वो क्या करेगा, आप लोगों का वो कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होगा। तो इसीलिए हम लोग उसमें जनरली क्या करते हैं, हम लोग जनरली उसमें मतलब नॉन फेरस न्यूट्रल फ्लेम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम आपका दूसरे टाइप ऑफ मेल्टिंग के लिए यूज होता है, जहां पर हार्ड फेसिंग होता है, ठीक है, जहां पर आपको बहुत हार्डर मटेरियल होता है, आपको उसको ब्रेक डाउन करनी है, उस टाइप ऑफ में आपका मतलब कार्बोनाइजिंग फ्लेम जनरली यूज होता है, ठीक है। तो वो सिंपल है, वो मैं एक यही पे आपका इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। जैसे नॉन फेरस एलिमेंट के लिए हम लोग जनरली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जनरली यूज कर सकते हैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज एंड वो सब के लिए, ठीक है। वी जनरली यूज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यस, क्योंकि वो इमीडिएटली गलाने का मदद करता है, वो हार्ड मटेरियल होता है ना, तो इमीडिएटली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से वो इमीडिएटली उसको ब्रेक करने के लिए मदद करता है नॉन फेरस एलिमेंट के लिए, ठीक है। बिकॉज वेल कंट्रोल आपका फ्लेम देता है, वो हीट ज्यादा जनरेट करता है, यस, इन ऑक्सीडाइजिंग में आपका हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है, ठीक है। और जनरली न्यूट्रल फ्लेम माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, जो हम लोग का जनरल वेल्डिंग प्रोसेस है ना, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, वो सब के लिए यूज होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑलरेडी ऑक्साइड लेयर फॉर्म करता है, वो ऑक्सीडाइजेशन के लिए नहीं यूज हो सकता, ठीक है, वो न्यूट्रल फ्लेम के लिए यूज होता है। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, बिकॉज उसमें FeC वो जनरली कार्बन कॉन्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो सब के लिए यूज होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपको हार्डर मटेरियल्स चाहिए होता है, बिकॉज आपको ज्यादा हीट चाहिए होता है, ठीक है, तो आप ऑक्सीडाइजिंग ब्रास, ब्रॉन्ज, उस सब के लिए ऑक्सीडाइजिंग यूज करते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग जनरली वो टाइप ऑफ गैसेस यूज करते हैं, यस। Yes, ma'am. Understood, ma'am. Thank you, ma'am. Please share the video, that's PPT, ma'am. हाँ ठीक है, जैसे स्टेलाइट टाइप ऑफ एक वेल्डिंग हो गया, जैसे हार्ड फेसिंग, ठीक है, वो टाइप में आप लोग सिर्फ कार्बोनाइजिंग यूज करते हो, तो उस टाइप ऑफ एक होता है, ठीक है, जो जनरल हम लोग का माइल्ड स्टील, आप लोग को जितना भी डेमो दिया जाएगा वो माइल्ड स्टील पे दिया जाएगा, बिकॉज इट इज लोअर कॉस्ट, यस, एंड इट इज इजीली अवेलेबल, वेरी वेरी लो कॉस्ट, यस। तो आप लोग को जनरली वही दिया जाता है। और कास्ट आयरन का जो रस्ट हो जाता है ना, इमीडिएटली आप लोग देखते रहते हो, कोई भी प्लेट्स रस्ट होके पड़ा हुआ है, वो कास्ट आयरन, उसमें कार्बन कंटेंट्स हाई होता है और वो रस्ट हो जाता है। तो और स्टेनलेस स्टील में आपका क्या होता है, वो स्टेन नहीं होता, इट इज एन एलॉय ऑफ स्टील इटसेल्फ, ठीक है, ज्यादा मैग्नीशियम, वेनेडियम वो सब मिलाया जाता है। सो वो सब को जनरली हम लोग आइडर न्यूट्रल फ्लेम से ही हम लोग करते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, सो मैं वो वाला आप लोगों को वैसे क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रास, माइल्ड स्टील, वो सब के लिए क्वेश्चंस आते हैं, ब्रास के लिए कौन सा फ्लेम ज्यादा यूटिलाइज होता है, इसके लिए कौन सा फ्लेम ज्यादा यूटिलाइज होता है, यस, वो सब छोटा छोटा क्वेश्चंस आते हैं। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, आई विल बी इंक्लूडिंग यू इन दिस स्लाइड्स इटसेल्फ, यस। तो कल आप लोग प्रिपेयर होके आएंगे ताकि मेरा आधा घंटा वेस्ट ना हो। इमीडिएटली मैं जब क्वेश्चन पूछूं, हो सकता है मैं कुछ आंसर्स क्वेश्चंस ना जानूं, आप लोगों के आंसर्स से सीखूं, या आप लोग, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग स्टेज, आप लोग कुछ आंसर मुझसे ज्यादा जान सकते हो। बट whatever is taught in the class, if you have any doubt, if I am wrong in any way, you have to point me out. It is not that in the next class, if I ask you any question, you somehow just wake up, oh my god, I've just woken up, what is ma'am asking, and then you will be just not knowing the answer. How can you expect me to give you 5 marks? You cannot expect me to give you 5 marks. Because if I have to be sincere in the class, you also have to be sincere in the class. Especially, I am really shocked about, I don't know. Monica is still there. I don't know if I am audible to Monica. I've called her name several times. Prachi, I think she did not come up. Prachi, am I audible? So
at least respond. If you don't know the answer also, the boys is at least respond, and they don't know the answer, they have responded that we don't know the answer. At least respond. What type of a behavior is that? Your full attendance you are getting, and you are not even responding to the answers, questions. So what is the use? Obviously, the teacher will get pissed off. ऐसे तो आप लोग फेल कर जाओगे, आप लोग अगर ऑफलाइन एग्जाम हम लोग ऑप्ट कर दिए. दिस इज वेरी बैड. यही जो आप लोग को एंजॉय करना है कर लीजिए. नेक्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का ऑफलाइन ही होगा, तब तो आप लोग का खत्म, तब लोग आप लोगों का असली परफॉर्मेंस दिखा जाएगा. एनीवे, गुड डे. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.